हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है प्रवीर जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी के चारों पेपर्स को क्लियर किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस प्रवीर जी ऑन क्लियरिंग ऑल द 4 पेपर्स। आई Thank होप you. आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। सो यू कैन जस्ट लेट आवर बैंकर्स एस्पिरेंट्स व्यूअर्स नो कि आपको कैसा लग रहा है एट दिस मोमेंट ऑन क्लियरिंग ऑल द 4 पेपर्स। Definitely, it is great feeling once you clear everything in the first time and first chance. It gives a very long running happiness. Will continue to give this kind of achievement once you achieve. वंडरफुल सर। तो रिसेंटली सर ने चारों जो पेपर्स है इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने क्लियर किए हैं। एंड वंडरफुली ही विल बी आल्सो शेयरिंग व्हाट वर हिज स्ट्रैटेजीज, कहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रबीर जी, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं No, या फिर। actually, basically, see, I am very. My background is very interesting, because since my student life, I was a science graduate, a science graduate. Then I joined Indian Air Force, in technical branch. So that is also engineering background. But from there, I during my service, I completed my master in economics because I was interested in economics, to know the economics, little bit about economics. And then I completed my MBA from in HR from IGNOU. You know, so you can find very interesting and mixing डाइवर्स educational background. uh, काफी डाइवर्स फील्ड्स में आपने yeah, किया है, बट इट इज रियली रिक्वायर्ड इन टुडेज डे कि सभी चीजों को yeah. थोड़ा थोड़ा में आता But हो। definitely, as the position I am holding here now, I am in this whatever kind of service I have joined in my second term. Definitely, that will help me. That is helping me these ओके, days. वंडरफुल। तो आपने मेंशन किया अबाउट योर एक्सपीरियंस इन इंडियन एयर फोर्स, उसके बारे में भी Yeah, अगर आप बताना चाहेंगे कि उस वो टाइम कैसा था yeah. एंड I व्हेन यू put up जॉइन 20 द years of बैंक। service. I put up 20 years of service because that was the initial engagement. After that, I got discharged from the service, and I we have some from government side. Are given some quotas and facilities to join the second service. So that is what I have done. ओके ओके, सो व्हेन डिड यू जॉइन द बैंक सर? 2018 I joined the bank. ओके फाइन। तो ये तो काफी गैप हो गया, तो आपको पहले भी लगा था कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए, और उस टाइम पे क्या कुछ इश्यूज आए थे या फिर कैसे Yeah, आपने yeah, उनको yeah, yeah, बताया? yeah. I was interested to complete the once first we joined bank, and our instructors advised us as definitely you complete your JIB CIB. But see, I am a complete family man, and initially I was posted at very far from my family. That time I was staying in Rajasthan, Jodhpur. Uh, my first posting in the bank was in Jodhpur, yeah, sorry, Rajasthan. So 175 kilometer away from the Rajasthan. So I had two very small kids, leaving them, staying outside. Definitely, tried. I bought some books also, Macmillan books also. Tried. Okay, I will start study, but that I couldn't make up my mind. Finally, I couldn't do that because lot of tension, lot of thing was there, which I had to give the priority. Uh, so I couldn't make up my mind in that way so that I could appear in the ओके exam. ओके ओके। So तो इनिशियली आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, ऑब्वियसली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, yeah, yeah, yeah. एंड इस वजह से यू कुड नॉट गिव, एंड यू गेव दिस एग्जाम रिसेंटली मई में 2025 में, एंड द फर्स्ट वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव क्लियर्ड इट। तो आपको Yeah. इससे पहले किसी ने कहा नहीं कि पहली बार में नहीं होगा तो सब्जेक्ट्स टारगेट करिए, ऐसा कुछ आपने रूमर्स सुने थे, या फिर आपने सीधा सीधा जो है अप्लाई किया एंड यू गेव इट? No, actually, some of my juniors in my branch motivated me. They said, "You appear in the exam. If you don't have time, you just try half of the papers first attempt and second attempt in the half of the paper." In the way, and I took it in the way of motivation. It is not that
दे डिस्करेज्ड मी, जे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दे बोला होगा, अगर हुँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव, वी नो, वी एक्नॉलेज दैट यू हैव इश्यूज, so you can appear in the two exams. This time you clear two, and next time you will clear two, but you just go for the exam, you must go. तो उनका मोटिवेशन भी मुझे अच्छा मिला। हाँ यार, हमें तो भी देना चाहिए। एक्चुअली बीइंग डेप्यूटी मैनेजर, आई मस्ट clear this exam. I must have some that kind of basic knowledge about the banking once I'm working in that. So I must appear in the exam and I must prepare myself. So that is the point. Something forced me or impelled me to fill up the form of the IIVF exam. ओके वंडरफुल तो इट वाज़ अ मोटिवेशन फ्रॉम द Yeah, yet a जूनियर्स साइड motivation for my juniors that if you are not able to make up yourself for 4 papers, at least you go for 2 papers. So there will be a lot of time you can clear another 2 papers. But ओके once I tried and once I joined, I found out your videos, videos from Mega Man, PPV, from your videos, IAN, FFS. So I thought, yes, this kind of video will help me definitely very nicely, and I can go for the 4 papers at a time. ओके So ओके नाइस सो वन थिंग इज देयर कि वीडियोस तो कई लोग देखते हैं बट ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ ये देख के हो जाएगा तो आपको बीच में कभी ऐसा लगा कि शायद ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते ऐसा no, कुछ no, लगा the first time, the once I, let me tell you the very truth about that. It was God connection, once the first I saw your video, that is Mega Man from PPB, I thought, yes, this is the right thing which I wanted. So after that I didn't think for another video or another different. Though I had another app in my mobile since I joined the bank, uh, but I didn't try to go for another app or another. There are a lot many institution like you. I didn't try because I don't know why did it happen, but it happened with me. That I got it that this is the thing I was in search of. ओके सो एक कनेक्शन हो गया और Yeah, फिर it आपने it कहा can, it कि can यही send है it as God connection, and I nice. I loved your videos and Mega Mem's videos and all the thing. Uh, and lastly, I felt like that जैसे थोड़ा और अच्छा था, और अच्छा, और कुछ वीडियो ऐसा टाइप होते तो और अच्छा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है यस, मेरा बैंकिंग में काम करते करते टाइम, सीखने का टाइम नहीं है अभी। काम करते करते जो आपका सामने, यू आर फेस द, वंस यू आर फेसिंग द चैलेंज, यू आर जस्ट लर्निंग समथिंग। ऐसा अलग से सीखने का जगह नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यस, अभी तो मेरा इतना एट दिस एज नया करके सीखना, इस काइंड ऑफ वीडियो मेरे को बैंकिंग में हर चीज में मिले तो हमें बहुत सारे फायदे होगा। आई कैन एनरिच माई सेल्फ इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। I can give a better service, better answer to the customers. यस Eh, एब्सोल्युटली तो बिफोर मूविंग अहेड और भी स्ट्रैटेजी आपसे जानेंगे इफ यू वुड लाइक टू मेंशन अगर आपको याद है कि कितने मार्क्स आपके आए थे चारों पेपर्स में इफ यू वुड वो वांट टू मेरे को याद है, INFES में 67, एंड पीपी में मेरा को थोड़ा कम आ गया था, एंड आई एम वेरी मच, इसके लिए तो मैं सॉरी। मेगा मैम का इतना अच्छा क्लास देखने के बाद भी आई कुडंट मेक इट 50, एंड इट वाज टू टफ एग्जाम। So 48 PPB, 61 in AFM, and 50 in that is RBW. आरबीडब्ल्यूएम Uh, ओके ओके नाइस तो एक्चुअली पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम वर डिफिकल्ट एंड एएफएम भी थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्ट टाइप का इट था वाज डिफिकल्ट, एंड आई जो वो होता है ना, जो संतुष्टि हो जाता है ना, वो आरबीडब्ल्यू में थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अगेंस्ट में एक्ट किया था। सारे लोग बोल रहे थे ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, पढ़ने की जगह जल्दी जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे ही एडवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे कोई बोल देता है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी आता है, तो वहाँ पे थोड़ा। बट पीपीवी आई ट्राइड हार्ड, बट पीपीवी में फिर भी हम नहीं कर पाए। आई कुडंट मेक इट 50। सो मुझे लगता है जब आई कुडंट डू द जस्टिस विद द मेगा मैम क्लास। नो नो सर तो पेपर तो डिफिकल्ट था एंड द जस्टिस इज डन बाय क्लियरिंग ऑल फोर पेपर्स तो यू हैव Yes, डन yes, इट yes, एंड yes. वो गुरु दक्षिणा में मिल गई है Hmm. तो इट इज रियली ग्रेट तो मेजरली आपने यूट्यूब के फ्री वीडियोस जो एडोट आपके वहीं से Yeah, प्रिपरेशन yeah. की Then I went through the free videos, all free videos. Yes, I ओके was a registered student. नाइस I'm not a registered student of that. ओके ओके
तो आपने एक पर्टिकुलर सोर्स को स्टिक किया कि हाँ इस सोर्स से अगर प्रिपरेशन करे जाए तो विल बी एबल टू क्लियर। तो इस चीज़ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस कि हम सिंगल सोर्स को फॉलो करें, मल्टीपल रिविजन्स करें, क्या आपको भी रिविजन का टाइम मिला था? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स इन जेआईबी प्रिपरेशन? Yeah, definitely it is very important to stick to the single source, because everyone is teaching, everyone is teaching. eh. Every doctor is treating on the basis of the same kind of literature, same kind of knowledge source. No, हुँ, लेकिन उनकी क्या है टीचिंग की, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर को ट्रीटमेंट में बैंकर्स की सर्विस बोलो, सब बोलो जो भी है डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर इंडिविजुअलिटी। सो वो इंडिविजुअलिटी अगर हमसे कनेक्ट हो जाती है, जैसे आपका पढ़ाई मुझे अच्छा लग रहा है, सो आई मस्ट कंटिन्यू विद द सिंगल सोर्स। आई शुड नॉट गो should not क्लियर go रनिंग। other, should not divert हुँ, myself to other source also. यस, Because what ओके, you are teaching, they also will be teach the same thing. Now only difference makes up the way you are teaching, where I am receiving, where I am able to connect yourself, connect myself to you. That is the most important. It happens when it happens, it is connected. I am connected to you nicely. Then I should not go इधर and उधर जाना नहीं चाहिए. हुँ, 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 राइट सर। And तो I did only that because हमने you think I tried, एक दो बार मैंने एक दो देखा था कि भाई ये लोग भी क्या दिखा रहे हैं. They are also doing the same thing. They are teaching nicely. They are explaining nicely. But मुझे फिर भी वही लगा ला रहे नहीं वो सुनेंगे. Again I came back to it. Like I am talking from my heart because I am not talking anything, nothing uh, lie यस yet सर। is there. Nothing is. I'm totally talking from my heart, and as I have been helped by you, I have been got a positive result after seeing it. That is why I have joined your meeting and your call. I have. वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो सर आपने मेंशन किया कि आप असिस्टेंट मैनेजर हैं इन द बैंक, तो Deputy. डेप्यूटी मैनेजर है, तो इस पोस्ट में टाइम, जैसे हमारी कॉल पे भी बात हो रही थी, टाइम काफ़ी कम मिलता है। तो वीडियोस एक्चुअली हेल्प यू, इस तरीके से आप बता रहे थे, तो कम टाइम में ये मोटिवेशन लेकर आना, क्योंकि आप कह रहे थे कि 10:30 10 बज जाते हैं घर आते आते, फिर ये मोटिवेशन लेकर आना वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है एंड क्लियर करना है पर्टिकुलर पेपर। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे इस पर्टिकुलर टाइम पे? देखो, हम ऐसा है जो पढ़ाई करना मोटिवेशन तो ऐसा नहीं है, मतलब बेसिकली सडनली तो आता नहीं है। एक उनका शुरुआत उनका जो कैरेक्टर, किसी का मोटिवेशन लेवल क्या होगा, शुरू का कैरेक्टरिस्टिक्स उनका जो है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनल जो ट्रेट्स है उनकी, वो भी थोड़ा बहुत है। तो मैंने आपको कहा, जो मैंने साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया, तो फिर बस कम उम्र में नौकरी लग गया, तो क्या जरूरत थी मुझे पढ़ाई करने की? बट स्टिल आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड एमबीए इन एचआर। सो पढ़ाई करने की जो एक थोड़ा-सा इच्छा है, और नॉलेज गेन करने की जो इच्छा है, ये तो शुरू से ही है, और थोड़ा बहुत तो है। हाँ, अब वो नहीं हो पाता, उतना भी ज़्यादा नहीं है जो मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ करके पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे इस बार जो मुझे लगा कि यस, आई शुड जस्टिफाई माय रैंक एंड डेजिग्नेशन। ऐसा है, यस, तो बैंक में एक डिप्टी मैनेजर, एज ए डिप्टी मैनेजर काम कर रहा हूँ, एंड पता चला मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। दैट विल नॉट गिव मी द फुल सेटिस्फेक्शन। Somebody come to ask me, I should have answered of that questions. I should be able to help them, and I have been given that role. So to play the role to nicely, to play the role completely, I must have knowledge. Where should I get knowledge from? So this is the way. If you go for the JIB or CIB like that, this kind of exam, definitely, automatically you will gain something, right? यस, And this is the thing motivated. In this way, वंडरफुल I सर। was. तो ऑब्वियसली वेर वी आर प्लेस्ड बैंक में जाते ही आजकल तो इवन एट द क्लर्क लेवल इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप जेआईबी क्लियर करें, एंड डिप्यूटी मैनेजर के पोस्ट पे होते हुए आपको लगा कि यस आई शुड जस्टिफाई दिस थिंग, एंड यही मोटिवेशन दी आपने एक ही सिंगल अटेम्प्ट में चारों पेपर्स क्लियर कर लिए, एंड दैट Yeah, इज़ रियली yeah, ग्रेट yeah. to see. So apart from this, I would also like to ask you कि what should we do कि single attempt में clear हो जाए चारों papers? क्या आपके कुछ insights हैं आपके preparation के journey से?
No, actually, yeah, you have to go through the whatever you are. See, I have told that I have not read a single word from the book. I have only depended. I only depended on your videos only. So whatever you are doing, you have to go through it concentratedly. You have to put concentration. ऐसा नहीं देख रहा हूँ कान में जा रहा है माइंड में नहीं जा रहा है ऐसा तो नहीं है होना चाहिए and you must be when something I knew new thing आपने कुछ बोला जो ऐसा होता है ऐसा होना चाहिए मतलब जो रूल्स बताया सपोज ये मुझे नहीं पता था हाँ और जब पता चला तो मुझे खुशी हुई जी यार ये नया चीज पता चला ये खुशी आना चाहिए जब ये खुशी आपको आ रहा है हाँ ये नया चीज पता चलने के मुझे खुशी आ रहा है दैट मीन्स यू आर एंजॉइंग एंड यू आर लर्निंग एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट जब आपको वो होगा और कंसेप्ट अगर आपको क्लियर थोड़ा बहुत होगा देखो एक छोटा सा वीडियो देख के एक वीडियो देख के तो बहुत सिलेबस कंसेप्ट नहीं होता लेकिन फिर भी हमारा जो लिमिटेशंस है विद इन दैट लिमिटेशन हमें अगर करना है तो वो कंसेप्ट अगर थोड़ा बहुत क्लियर होता है जो आपका वीडियो हमें सबसे हेल्प किया था तो क्या है ना एग्जाम क्या क्या आप यू कैन थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन से भाई हमारे जो कंसेप्ट है उनका बेसिस में हम कुछ सोच सके कुछ आंसर कर सके जरूरी नहीं है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो आता भी नहीं है आजकल तो ये है तो इस तरह से हमने किया और सबको मुझे लगता है जो करना चाहिए ऐसे। यस, वंडरफुल सर। तो ये जो आपकी जर्नी है इसमें जैसा आपने मेंशन किया कि टाइम का जो रेस्ट्रिक्शन था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो जब भी एज वी कैन से कि हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारे पीछे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि हमने अकेले ही इस चीज़ को किया हुआ है। तो आप किसी का मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पर, किसी का नाम लेना चाहेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके जूनियर्स जैसा आपने मेंशन किया, या फिर और भी कोई फ्रेंड्स या है, कलीग्स या हैं या या जिन्होंने देव आपको सी सपोर्ट किया? definitely I have an officers below my rank, officer's rank, Nisha Agarwal madam. She also motivated me just sir aap de do and Deepankar saw is our head cashier. She has also he has also last phase he completed JIB and this time he appeared in CIB also. uh, he also motivated me. First, these 2% from my branch, and I had received my wholehearted support from my wife and children. Definitely, they have stressed their hand. They have rendered a lot of help. They have given me chance to study, and every Sunday, exam is there. Exam was there. So every Sunday, my daughters are they have classes for dancing. They have classes for singing. Every Sunday I get busy. I told your Tanika ma'am that Sunday भी मैं busy रहता हूँ. तो संडे क्यों बिजी रहता हूँ बिजी इसलिए रहता हूँ बच्ची को ले जाना पड़ता है मतलब म्यूजिक क्लास में डांस क्लास में दिन भर का बिजी हो जाए तो वो सब जो 4 दिन का एग्जाम है उससे पहले ये मेरे मिसेस ने सारे संभाला a lot of things, a lot of help I received from her. ओके, उन्होंने हमें वंडरफुल बोला फिर। ठीक है आप एग्जाम तो डोंट वरी फॉर दैट हम संभाल लेंगे उन्होंने एक बच्चे को लेके आया फिर उसको छोड़ के फिर दूसरा बच्चे को लेके गया दूसरा क्लास में मतलब विदाउट हैविंग ए ग्लास ऑफ वाटर सीट दैट्स डेफिनेटली आई एम Wonderful, wonderful, sir. It is thank we are also thankful from our team to Nisha ma'am, Pankaj sir, and also uh, ma'am wife जो सर के हैं। तो इट वाज रियली ग्रेट टू नो कि सभी लोगों ने आपको काफ़ी अच्छे जो है हेल्प की है, एंड द रिजल्ट इज ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ अस। वन लास्ट थिंग दैट यू आल्सो मेंशन कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो एएफएम क्या थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट था, और कैसे आपने डेफिनेटली उसको मैनेज किया? 61 तो काफ़ी अच्छा डेफिनेटली स्कोर है। हाँ, एफएम मेरे को डिफिकल्ट ऐसा नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे थे, जो चीज़ जो ऐसा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली बैलेंस शीट वगैरह मुझे तो समझ में ठीक से समझना में मुश्किल हो रहा था। मुश्किल मतलब समझना मुश्किल नहीं हो रहा था, उसको रिटेन करना, उसको फिर रिकैपिचुलेट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो मिक्स अप हो जाता है, सारे कन्फ्यूज़िंग टाइप हो जाता है। डेबिट, क्रेडिट वो जो गोल्डन रूल्स है, वो तो याद रखना कभी-कभी देख कब किसको देना है, रिसीवर, गिवर जो भी जो है। बट स्टिल जैसे मैंने मैथ वगैरह देखा था उसमें मुझे जो इजी लगा जो यस दिस कैन जैसे हमने ना प्रिपेयर किया था वो मैथ सारे देखा था लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान दिया था हमने जो इसके डिप्रिशिएशंस का मैथ है ना डिप्रिशिएशन में बहुत सारे मैथ्स है वो डिप्रिशिएशन का मैथ वो हमारे जो बचपन से जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना परसेंटेज का मैथ करके आ रहे हैं उसके साथ मिलता जुलता है उसके साथ ही वही टाइप ही है तो
वो सब ज़्यादा किए थे और वो सब जब आए थे तो उसको अच्छी तरह से हमने आंसर कर पाए। तो हमने मैथ्स वगैरह में ना पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज एफर्ट दिया था rather देन सबको एफर्ट देने के लिए। हमने इनिशियली जब वीडियो देखा था सारे देखा था, पर जब फाइनल रिवीजन के टाइम मैंने एफर्ट ऐसा दिया था कि भाई ये सब हमारे पास की बात है तो हम कर रहे हैं, कर सकते हैं इसको। इसको जाके एग्जाम हॉल में भी हम वो कर सकते हैं, सॉल्व ओके। कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो उसमें जो मैथ्स अगर आया था तो उसको मैं ठीक से सही तरीके से सॉल्व कर दिए थे। डेफिनेटली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होने में तो ये बैलेंस शीट तो थोड़ा टफ चीज है ही। मेरे को तो लगता है जो बैलेंस शीट थोड़ा याद रखना और उसको ठीक तरह से करना काफी वो है। यस सर। तो आपने एरियाज आइडेंटिफाई किए कि यस, ये हमने एरियाज आइडेंटिफाई किया व्हिच आई कैन परफॉर्म बेटर। स्ट्रॉन्ग, यस, हाँ, स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हो सकते हैं उनको हाँ, आइडेंटिफाई किए, उन पे वर्क किया। जी एंड डेफिनेटली। न्यूमेरिकल्स पे खासा ध्यान दिया आपने, कुछ जो आप बता रहे डेप्रिसिएशन वगैरह। तो हाँ, क्योंकि ये बार बार आता है एग्जाम में, एंड ये चीज़ आपने ट्रेंड भी आइडेंटिफाई किया ही होगा हाँ, फ्रॉम द वीडियोस एंड मतलब ऑल। थ्योरी तो सारे सुना, सारे आपका देखा, वीडियोस देखा, बट न्यूमेरिकल भी तो आना है। और ऐसे ही आइडिया था जो न्यूमेरिकल्स बहुत आता है यहाँ पे एफएम में। तो न्यूमेरिकल्स को छोड़ के हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे ऐसा मैं नहीं सोचा था। न्यूमेरिकल में आइडेंटिफाई किया था जो हमें जो इजी लगता है, जो इजी मीन्स जो हम कर सकते हैं यस। अल्टीमेटली उसको। ऐसा नहीं है जब मैंने वाईटीएम वगैरह नहीं देखा, देखा था, वो भी देखा था, वो भी कर रहा था, वो भी मेरे से हो रहा था, बट आई डिडंट हैव दैट मच टाइम टू प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ मैथ्स। सो हमें जो इजीली एक्सेप्ट हो रहा था, दिल से जो एक्सेप्ट हो रहा था वो कर किया। Okay, wonderful. And the result is in front of everyone. 61 is a very good score, I would say. And also wonderful score in I and IFS. तो कई लोग आई एंड आईएफएस के साथ भी स्ट्रगल करते हैं, सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम? सी आईएनएफ आईएफएस मेरे लिए थोड़ा सा एडवांटेजियस इसलिए था बिकॉज आई हैड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। यस। हाँ, तो थोड़ा बहुत हमें इकोनॉमिक्स में कब पढ़ा, कब मैंने पास किया, मास्टर्स किया, वो सब तो भूल गया था। लेकिन जब आपने बताया चीज़ जो, वो फ़र्क यहाँ आता है, जब आप बताते हो तो जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, उसको समझ में आता नहीं है हमें, लेकिन समझ में आ जाता है। जी हाँ, ये तो मैंने कभी पढ़ा था। ये फ़ायदा होता है ना पढ़ने का। तो ये इसलिए आईएफएस में लेकिन सी ऐसा कोई जेईबी में ऐसा भी तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा इफ यू गो थ्रू द प्रॉपर्ली और इफ लिसन योर टीचर्स प्रॉपर्ली। हाँ, तो वो अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा बिकॉज़ इकोनॉमिक्स इज़ लाइक जिसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा इकोनॉमिक जो टर्म है ये सारे लोग सुनता है बिकॉज़ इंडियन इकोनॉमी जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में न्यूज़पेपर में आता है, चर्चा होता है, न्यूज़ में सुनता हूँ। ये सब टर्मिनोलॉजी जो है लोगों का सुना हुआ। तो थोड़ा-सा ध्यान से सुनेंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए और इकोनॉमिक्स की मोटी-मोटी किताब पढ़ना है। वो आपका यही ठीक से अगर सुनेंगे, जिस तरह से आप लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट करते हैं, दैट इज़ द थिंग ना मेन थिंग वी कैन रिटेन द थिंग वन्स यू आर एबल टू रिलेट द थिंग विद द प्रैक्टिकल वर्ड, है ना? वो यस। रिलेट करना किस तरह से करना है, वेयर योर एक्सपर्टाइज़ कम्स इन द पिक्चर। आई एम वेरी मच फ्रैंक अबाउट दैट। आप लोग जिस तरह से समझाते हो ना वो रिलेट समझाते हो मतलब क्या करते हो रिलेट करते हो जो प्रैक्टिकल वर्ड में जो भाई पेट्रोल में का रेट कल बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी एंड यू गो टू सभी लोग भाग रहे हैं जो पेट्रोल पंप में जो कल पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा सो स्पेकुलेशन में भी डिमांड बढ़ता है। ये जब एक आदमी ने रिलेट कर लिया प्रैक्टिकल वर्ड के साथ जो कल प्याज का दाम बढ़ेगा अनियन का रेट बढ़ेगी तो आज 5 किलो प्याज हमने खरीद लिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ प्याज का डिमांड बढ़ गया। तो ये चीज जब रिलेट कर सकेगा कोई तो उसको वो चीज जिंदगी भर याद रहेगा एंड द रिलेशन का रिलेट करने का जो काम है तरीका है जो हेल्प है दैट इज यू आर डूइंग नाइस। ये तो अल्टीमेटली अगर कोई ध्यान से सुने तो उनको समझ में आ जाएगा। दे शुड बी स्टिक टू द टीचर, दे शुड बी स्टिक टू द वीडियोस इफ दे आर गोइंग थ्रू द वीडियोस दे आर रीडिंग द बुक दे शुड बी स्टिक टू द। और मैं तो ये बहुत कहूंगा जब somebody आजकल का पढ़ाई इतना इजी हो गया जो हमारे टाइम में नहीं था। जो अगर दे आर स्टडिंग द बुक मैकमिलन बुक भी पढ़ रहे हैं उनके पास टाइम है दे स्टिल दे आर दे शुड डिपेंड ऑन सम वीडियोस जो भी उनको अच्छा लगे वो देखना चाहिए सो दैट इट विल गिव द बेटर क्लैरिटी सर। यस। ओके, नाइस सर। तो वॉट एवर यू आर डूइंग स्टडिंग, तो क्विकली चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए वीडियोस आर अ वेरी गुड सोर्स। एंड आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो यू कैन जस्ट सी किसके साथ आपका कनेक्ट बन रहा है एंड यू कैन जस्ट फॉलो देम।
So finally, sir, if you would want to give one last message to all the people जो आगे ये JIB एग्जाम देंगे सिंगल अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना एंड if you have anything special to tell them कि या इस एग्जाम से related तो what would that be? इसमें स्पेशल एक ही चीज होता है, जो हमको देना है हमको करना है। इस टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड हैव, दैट इज ओनली द मेडिसिन कैन क्योर एवरी प्रॉब्लम। हमें देना है, हमें करना है भाई, किसी भी तरह से हमें करना है। हमें ये होना चाहिए, ये फीलिंग जैसे हमें लगा ना कि यार देखें डिप्टी मैनेजर आई शुड क्लियर माय जेआईबी। हमें तो आता ही नहीं है कुछ। हम क्या खुद का पोस्ट को, खुद का डेजिग्नेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे बाद में। तो वो होना चाहिए जब भाई हमें देना है, हमें करना है। एंड बी अटेंटिव, बी स्टिक टू द, बी हैव फेथ ऑन द टीचर्स। जहाँ देख के be on a single video, single teachers, so that you will not get diverted। आपका confusion कम create होगा उसमें, तो आपका हो जाएगा। इस बड़ी तो 50 लाना है आउट ऑफ 100। जब Yes. हम कर सकते, मैं तो यही मैसेज दूंगा, इफ यू आस्क फॉर द मैसेज, भाई मैं जब मैं कर सकता हूँ तो यू कैन मेरे से अच्छा कर सकते। नहीं नहीं सर, आप तो काफ़ी डेडिकेटेड है एंड अ बिग सैल्यूट फॉर योर सर्विस टू द नेशन आल्सो कि थैंक यू सर। पहले आपने इतना किया एंड देन यू आर इनटू द बैंक एंड डिप्यूटी मैनेजर एंड काफ़ी जो है एम्बिशियस एंड बहुत अच्छा आपका जो है विजन है जो कनेक्ट कर रहा है हमारे साथ भी। तो आई वुड से कि जो भी बैंकर्स एंड जो भी एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे रहे हैं, देयर इज़ अ होल लॉट टू लर्न फ्रॉम सर। इनकी जो स्ट्रैटेजी है सब कुछ हमने जाना एंड आई होप दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर journey also. So finally, once again, congratulations, sir, on clearing all the four papers of JIB exam and wishing you all the best for CAIB and आगे भी आप लाइफ में इसी तरीके से तरक्की करते रहें. That is what we hope and expect and pray for you from the entire team of EduTab. Thank you so much, sir. Thank you. I also congratulate you for the effort. Your effort has got success. Your health has got success. Thank you. Your health. Thank you, sir.